वालेकुम अस्सलाम। Where is all your class? अच्छा जी, आज हम लेक्चर 22 में नॉन ट्रेडिशनल जो मशीनिंग है उसका लास्ट पार्ट करने लगे हैं। और वो बेसिकली हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग को जिस तरह क्लासिफाई किया था हमने, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी दे यूज्ड, एंड फर्स्ट इट वाज क्लासिफाइड according to the mechanical energy utilization, and in that you have studied about ultrasonic machining, that then water jet machining, that abrasive water jet cutting or machining, right? On the second classification was depending upon in this classification the second type was electrochemical machining, in which the tool is charged as negative electrode, and workpiece is charged as positive electrode, and then the machining is performed like electroplating, or you can say it is an opposite of electroplating process, in which electroplating process the material is made upon something, and in electro discharge machining or electrochemical machining you remove material from the material. After that, you in that process you have studied about different types of electrochemical machining and how they are performed. In the third type, we were discussing about thermochemical machining, in which thermal energy is being used, and thermal energy is used in the similar manner as you use it in welding. So instead of joining two parts, you will actually use that high temperatures to melt or vaporize the material, and then a wire, or you can say without a wire, or in some cases high impact electrons will be used to cut the material, right? So first, uh, electrochemical machining is opposite of electroplating, and thermochemical machining is actually opposite of uh, same type of welding processes. So as welding processes, electric arc welding, electron beam welding, laser beam welding, plasma arc welding, these all types are of welding. There is the same types of electrochemical machining, sorry, thermochemical machining exist, and three types we have already discussed. Now today we will go through four types, which is laser beam machining. ठीक है? So in laser beam machining, it uses the light energy from a laser to remove material by vaporization and ablation. ठीक है? So basically ablation is the same process of melting, in which you will use a monochromatic light. Monochromatic means that single color light which have one wavelength and passes in a parallel manner. This parallel light, this is the procedure which is not that relevant to you, that how laser is being created. Then they used a lens which will actually focus these all laser lights to one point, and at this focal point the high temperature of waves will be generated, and this will be used to cut the material, right? So as you know that light is there is no possibility for light to pass an opaque object. So this type of laser beam machining is not utilized for very high depth to dia ratio, in contrast to what you have studied in electron beam welding, where you can machine the part or a hole in a product in very high depth to dia ratio. If
depth is very high, whereas dia is very small. You can machine that hole using electron beam welding or electric discharge welding, or any process in which there is, sorry, electric discharge नहीं, electrochemical process in which opposite of electroplating is happening. ठीक है, तो ये दो प्रोसेस जो है वो बेसिकली यूज किए जाएंगे. अब जो है वो अब देखेंगे लेज़र बेसिकली है क्या. लेज़र है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. तो बेसिकली लेज़र करता क्या है. लेज़र कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ हाईली कोहेरेंट लाइट बीम विद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. its properties are that it's a monochromatic single wavelength light, and it's highly collimated, that is all the rays are perfectly parallel. That is why we are able to focus all these rays and result in a very focused light will high uh, density, power density, and that power density will result in a very narrow band, and a very high dimensional accuracy can actually be obtained from laser cutting. So this high temperature, as you know that you are studying it in thermochemical process, and basically all these sources, laser or electron or plasma, are being utilized to develop high temperatures, and that high temperatures are basically working as an energy to produce that uh, machining process, right. Laser beam machining, where it find its application, includes drilling when you want to make holes, slitting, slotting, scribing, or you can say scribing means grafting, and marking operations. So such type of operation will use laser beam machining, and these all operations you can see that these are for not for very deep cutting. So whenever you require deep cutting, you can't use laser beam machining, right. Drilling small, because light could not be passed in opaque objects, so for it is limited to surface operation. Drilling small diameter holes down to 0.025 millimeter is possible through laser beam machining, because its photon size is slightly greater than electron. So basically it's photon size that is actually making a front tool of this machine. And this is usually used on a thin stock work materials. thin stock वही डेप्थ पे इतना ये इफेक्टिव नहीं है. इसके लिए जो वर्क मटेरियल्स हैं they are huge, or you can say it is multi talented in a way that many kind of work material can be machined on laser beam machining. It also includes high hardness and strength materials, as well as soft materials, ceramics, glass and glass epoxy, even plastics, rubber, cloth and wood, depending upon what wavelength of light or what type of laser will be used. But this all kind of materials can be machined using laser beam machining application, right. On the other hand, here you will see that laser beam cutting operation is performed, and the other part is actually the same what you have seen in the block diagram. And the light which is creating is when uh, reacting back or reflecting back is developing such type of high arcs, right. Next topic is plasma arc cutting, and plasma arc cutting is basically the same process which plasma arc welding do. So in this, basically, as you know that plasma is basically high temperature ionized gas which is produced from an electrode, and that can be of any inert gas like tungsten electrodes, or other type of electrodes can also be used in this so basically we uses a plasma, that is high temperature ionized gas stream operating at very high temperatures to cut metal by melting. Here is this plasma gun, you can say.
that here, or plasma arc torch, here is tungsten electrode which is negatively charged. This is torch body, and this is outer shell. Basically you want to cool it up using some type of fluid, that is why its shape is like this. Then you can see that work material is positively charged, tungsten electrode is negatively charged, and it is basically melting the product, and the melt product is removed by a curve, right? So as you can see that you have to charge one as negative ion and other as positive electrode. That is why plasma arc welding is only possible on such parts which are conductor of electricity. Whichever part is not conductor of electricity can't be machined on plasma arc cutting, whereas it's not the limitation in laser beam machining or electron beam machining, right? So here you can see that surfaces are also covered up by secondary gas, so that they do not react on so many area. But plasma arc cutting do not give very um you can say a good dimensional accuracy, and as a result, because these are gas ions and they are scattered, that is why uh, good dimensional accuracy can't be achieved through it, and that is why it's only applied in roughing operations. Operation of plasma arc cutting is: plasma is basically a superheated electrically ionized gas. Plasma arc cutting temperatures are very high. It ranges from 1000 degree centigrade to 14,000 degree 10,000 degree centigrade to 14,000 degree centigrade. And plasma arc is usually generated by electrode in torch and anode as a workpiece will behave. The plasma flows through water cooled nozzle that constricts and directs stream to desired लोकेशन, ठीक है? ये जो हाई टेम्परेचर आयोनाइज्ड गैस है उसको वाटर कूल्ड नोजल्स के थ्रू जो है वो डायरेक्ट किया जाता है कि वो उस पॉइंट के ऊपर वर्क करे। इसकी एप्लीकेशन में कटिंग ऑफ फ्लैट मेटल शीट्स और प्लेट्स भी हैं। कहीं पर होल पियर्सिंग करना हो या कटिंग अलोंग अ डिफाइंड पाथ करना हो तो ये यूज़ किया जा सकता है, एंड कैन बी ऑपरेटेड बाय हैंड हेल्ड टॉर्च और ऑटोमेटेड सीएनसी लाइक इट कैन बी डन। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी जो है वो दोनों मेथड से की जा सकती है, तो इसी तरह ये भी दोनों मेथड से जो है वो पॉसिबल है। और ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मेटल्स को ही कट करती है, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो कट मेटल्स हैं इसके अंदर वो कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम ही है, क्योंकि बाकी सिरामिक्स, प्लास्टिक्स, वुड या फेल्ट वगैरह जो है आपको पता है कि वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो दैट इज़ वाई यू कांट मशीन दोज प्रोडक्ट्स ऑन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है? ये हमारा एंड हो गया थर्ड क्लासिफिकेशन जो कि थी थर्मोकेमिकल मशीनिंग की, और उसमें हमने 5 टाइप्स पढ़ी हैं। अब हम फाइनली जा रहे हैं केमिकल मशीनिंग में, जिसमें केमिकल रिएक्शन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होगा, और वो सरफेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन करके उसके सॉल्ट्स बना के, तो एचिंग इसको कहते हैं, और उसके थ्रू जो है वो सरफेस जो है वो रिमूव करेगा, ठीक है? तो केमिकल मशीनिंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस इन विच मटेरियल इज रिमूव बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट, ठीक है? आई केम टू नो दैट यू हैव ऑलरेडी done that in your materials lab, that you have gone through some microstructural analysis of surfaces, and in that केमिकल मशीनिंग जो है वो उसी तरीके का प्रोसेस है कि आप एक एसिड टाइप स्ट्रक्चर, हर मटेरियल के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जांपल HCl यूज होता है एजेंट के तौर पे फॉर स्टील्स, ठीक है? तो इसी तरह डिफरेंट उसके लिए वो एजेंट्स यूज होते हैं, और उस तरह जो है वो उनको
केमिकल मशीनिंग जो की जाती है। एप्लीकेशन एज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इसकी स्टार्ट हुई थी जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है। द यूज़ ऑफ केमिकल्स टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम अ वर्क पार्ट कैन बी accomplished in several ways. ठीक है। एंड डिफरेंट टर्म्स हैव बीन डेवलप्ड टू डिस्टिंग्विश द एप्लीकेशन, दैट इज वाई केमिकल मिलिंग, केमिकल ब्लैंकिंग, केमिकल इंग्रेविंग या फोटोकेमिकल मशीनिंग जो है वो डिफरेंट नेम सजेस्ट किए गए हैं अगर आप एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ वो अप्लाई हो रही है। ठीक है। तो इसका लेकिन जो जनरल प्रोसेस है वो सेम रहता है। वो ये है कि सबसे पहले हम, जिस तरह अगर आपने एचिंग वाला प्रोसेस किया था तो आपको पता है कि आप पहले ग्राइंडिंग करते हैं, फिर सैंड पेपर यूज़ करते हैं, फिर फाइनली बफिंग करते हैं, और बफिंग करने के बाद जब सरफेस बिल्कुल नीट हो जाती है तो एचेंट अप्लाई किया जाता है। उसका मकसद ये होता है, एक तो कोई और चीज़ ना मौजूद हो ऊपर जो कि उसके साथ केमिकल रिएक्ट कर जाए और सरफेस केमिकली रिएक्ट ना हो, और दूसरा मकसद ये होता है कि सरफेस यूनिफॉर्म हो जाए ताकि डायमेंशनल एक्यूरेसी अचीव की जा सके। so basically first step in cleaning is cleaning, and which is to ensure that material will be removed uniformly from the surface to be etched। ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप ये है कि मास्किंग की जाए। मास्किंग ये है कि a protective coating called a maskant is applied to certain portions of the part surface. This maskant is made of a material that is chemically resistant to the agent. The term resist is used for this masking material. अब क्या है कि मास्किंग ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं स्टैंपिंग करनी है और स्टैंपिंग में कुछ राइस पोर्शन है और कुछ लो पोर्शन है। तो जो राइस पोर्शन है यानी बेसिकली उनके ऊपर मशीनिंग नहीं होनी, तो आप उनके ऊपर वो मास्क अप्लाई कर देंगे। ठीक है। और वो मास्क अप्लाई होने की वजह से वहाँ वो एजेंट रिएक्ट नहीं करेगा और बाकी सारा एरिया रिएक्ट होके रिमूव हो जाएगा, और जो मास्क वाला एरिया है वो अनटच रहेगा। ठीक है। तो इसी वजह से ये उन पोर्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है जहां पर वर्क सरफेस को नहीं एच कराना होता। ठीक है। एचिंग नहीं करानी होती। उसके बाद थर्ड प्रोसेस एचिंग ही का है, जिसके अंदर मटेरियल को रिमूवल स्टेप है और इसमें पार्ट जो है वो इमर्स कर दिया जाता है एचेंट में, जो केमिकली रिएक्ट करता है या अटैक करता है दोज पोर्शन को जो मास नहीं हुए होते। और यूजुअल जो मेथड ऑफ अटैक है वो ये है कि वर्क मटेरियल में फॉर एग्जांपल मेटल वगैरह है तो उनको सॉल्ट बना दिया जाता है रिएक्ट करके। ठीक है। ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके, that dissolves in the agent or is thereby removed from the surface। और जब डिजायर अमाउंट मटेरियल की रिमूव हो जाती है तो बाकी पार्ट को विड्रॉ करके एजेंट को वॉश अवे कर दिया जाता है ताकि मजीद प्रोसेस जो है वो ना हो। फाइनली फोर्थ इसका पार्ट है डीमास्किंग का, जिसके अंदर मास्क को रिमूव किया जाता है। ठीक है। ये केमिकल प्रोसेस की ओवरऑल जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। ये आपको समझ आ गई है? कोई सवाल है यहाँ तक? जी नो मोहम्मद मैम। अहमद रजा। नो मैम। मोहम्मद अहमद रजा। इसे डीमास्किंग में वैसे क्या होता होगा? डीमास्किंग में जो मास्किंग की गई है ना, जी। उसको बेसिकली वॉश अवे किया जाता है। पूरा ही केमिकल से रिलेटेड ऑपरेशन है, लेकिन उसके लिए जो वॉश का केमिकल यूज किया जाता होगा वो अलग होगा। हो सकता है वाटर ना हो। ठीक है। ओके। अच्छा जी। जी मोहम्मद अहमद रजा साहब, कैन यू हियर मी? रोल नंबर 23। यस मैम। मास्किंग क्या है बेटे? मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है, वो लेट आया था तो जुमा पढ़ के। इसीलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हैं? मैम वो मस्जिद दूर थी, जुमा पढ़ के अभी आगे मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है। फिर अब ये पढ़ लेना, कुछ ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं यही कह सकती हूँ। क्योंकि ओके मैम। जुम्मे वाली या तो क्लास अपनी आगे पीछे करवाते थी। अच्छा जी। अब हम बेसिकली उस पार्ट में आ रहे हैं जो कि आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, वही डिसीजन मेकिंग वाला। ठीक है। फॉर मैम एग्जाम्पल वो आपको एक एक सिनेरियो सवाल दे था। दूँ। जी जी। मैम ये जो हम कहते हैं कि कार की कंपाउंड पॉलिश करवाओ जाके ना, से मीन के सरफेस फिनिश अच्छी होती है, यहाँ दो कोई मिनट जरा, स्क्रैचेस वगैरह? 2 मिनट उस्मान रुकिएगा, मैं जरा हेडफोन्स लगाऊं, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ जी, अब बोलेंगे ना। मैम मैं ये कह रहा था कि जो कार को हम कहते हैं कि जब स्क्रैच वगैरह आ जाए कार पे, तो आप जाके ना कंपाउंड पॉलिश करवाओ जाके कार की ना, जिससे आपकी जो सरफेस है वो अच्छी फिनिश हो जाएगी। तो मैम उसमें करते प्रोसीजर क्या होता है मैम, कि हमने जो पॉलिशिंग परत होती है कि पॉलिश लगा दी ऊपर, ऊपर से कोई रेगमार वगैरह फेर दिया या हाँ उस ग्राइंडर के साथ कर लिया। हाँ, क्या हाँ, लव यूज तो करते हैं वो कार के लिए? कंपाउंड पॉलिश। कंपाउंड पॉलिश का लफ्ज, अच्छा। तो वो बेसिकली ये ग्राइंडिंग में आपने पढ़ी है ना, ये पॉलिशिंग बफिंग वगैरह, यस ये मैम। वो वाला प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो आपने एक लैपिंग का प्रोसेस पढ़ा था, जिसके अंदर एक फ्लूइड में ग्रेन्स डाल यस के मैम, वो ग्लास ग्लास के लिए होता है कि ग्लास ग्लास के आपने लिए ना। साफ करना। तो यस ये मैम। वो प्रोसेस है। जो एचिंग है ना वो डिफरेंट है बिल्कुल, ठीक वो है तो केमिकल रिएक्ट करवा देता है ना। मैम, ये हमने तब किया था मटेरियल के लैब में, जब वो सफेद आप उसे फाइन कर लेते हैं, रेगमार वगैरह मार लेते हैं, उसके बाद फिर हाँ आपने फिर वो क्या कहते हैं स्मूथ, जिसे शाइनिंग कहते हैं, वो लगाने के लिए आप हाँ, एचिंग मिरर करते हैं फिनिश लेकर उसको आते हैं, मिरर फिनिश। अल्कोहल में। हाँ, मिरर फिर अल्कोहल में डिप हाँ कर देते हैं। ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, वो हर एक के लिए अलग अलग एजेंट है, कुछ के लिए ठीक है। अल्कोहल। ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक हो। तो बेसिकली वो हर एक के लिए अलग अलग एजेंट है। वो जो मिरर फिनिश लाने का मकसद है वो यहाँ पर ये है कि एक तो उसके ऊपर कोई इम्प्योरिटीज ना हो ताकि उसके साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है, आपका एजेंट। ठीक है। और दूसरा मकसद ये कि डायमेंशनली एक्यूरेट होगा तो वो ग्रेन का स्ट्रक्चर देगा, अदरवाइज नहीं देगा ना। यस मैम। ठीक है, तो दैट इज वाई ये इस तरीके से अप्लाई हो रही है। ठीक। अच्छा जी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो ये 3-4 स्लाइड्स हैं, इसको गौर से सुनिएगा, कोई सवाल हो तो पूछिएगा भी। वो ये है कि अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि मेरा ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अब मुझे बताइए कि कैसे मैंने मशीनिंग करनी है, ठीक है। तो आपको ज्योमेट्रिकल फीचर के ऊपर डिपेंड करते हुए लाइकली नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी दैट इफ यू वांट टू मेक वेरी स्मॉल होल्स, ठीक है, जो कि आपको पता है कि कन्वेंशनल ड्रिल बिट्स जो हैं वो उतने स्मॉल होल्स के लिए बनी हुई नहीं होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 0.025 अच्छा, तो ड्रिल बिट्स क्योंकि अवेलेबल नहीं है कन्वेंशनल, और हमने कोई नॉन ट्रेडिशनल ही प्रोसेस यूज़ करना है, अगर हम देख रहे हैं कि हम वेरी स्मॉल डायामीटर होल्स बनाने हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो 0.025 मिलीमीटर तक होल्स क्रिएट किए जा सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग यूज़ करें या लेज़र बीम मशीनिंग यूज़ करें, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हमें चाहिए होल्स करने हैं जिनकी डेप्थ टू डायमीटर रेशियो जो है वो ज़्यादा चाहिए, यानी डेप्थ बहुत ज़्यादा है और डायमीटर कम है, तो उनके लिए भी ड्रिल बिट्स जो है वो यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि ड्रिल बिट्स अगर जितनी लंबी हो जाएंगी उनकी स्ट्रेंथ उतनी लो हो जाएगी और वो हो सकता है होल के अंदर ही फ्रैक्चर हो जाए। तो उनके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग यूज़ करते हैं। दोनों प्रोसेसेस क्योंकि मटेरियल की स्ट्रेंथ के ऊपर बेस बना के कटिंग नहीं कर रहा होता, और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में आपको पता है कि इलेक्ट्रोड जो है उसमें वो डाउनवर्ड जो है वो मूव करती जाती है, डाउनवर्ड मूव करती जाती है और रिजल्ट में वो कटिंग करती जाती है। तो इसमें जो है वो क्योंकि कोई फिजिकल टूल जो है वो एक्ट नहीं कर रहा होता, असल में जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो रहा होता है, दैट इज़ वाई लार्ज डेप्थ टू डायमीटर रेशियोज के लिए आप ये दो प्रोसेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर होल्स जो कि राउंड ना हो, ठीक है, तो राउंड जो होल नहीं होते वो ड्रिल हो सकते हैं, वो ड्रिलिंग मशीन के ऊपर ड्रिल नहीं हो सकते, उनके लिए आपको या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, ये आपने जब पढ़ी थी तब भी आपने इसको पढ़ा था कि ये यूज़ कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जो आपने
अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है, वो आप जो है वो यूज कर सकते हैं। ईडीएम जो है वो बेसिकली थर्मल प्रोसेस की फर्स्ट टाइप है, ठीक है। या तो ये यूज कर सकते हैं, या जो आपने सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ी है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की, वो जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी थर्मल प्रोसेस भी यूज हो सकता है होल्स के लिए जो कि राउंड ना हो, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस भी हो सकता है जो राउंड होल्स ना हो। फिर अगर आपने नैरो स्लॉट्स बनानी है तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग भी है, लेजर बीम वेल्डिंग भी है, वाटर जेट कटिंग भी है, वायर ईडीएम भी है, और एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग भी यूज की जा सकती है। तो ये सारे स्लॉट्स बनाने के काम आती हैं जो बहुत इंट्रिकेट स्लॉट्स होंगी। अगर आपने माइक्रो मशीनिंग करनी है तो उसके लिए स्मॉल होल्स या नैरो स्लिट्स हैं या अदर मटेरियल रिमूवल एप्लीकेशंस हैं जिनमें वर्क पार्ट एरिया जो है वो बहुत स्मॉल है, तो आप प्लाज्मा जो कटिंग मशीनिंग है और लेज़र बीम मशीनिंग या इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शैलो पॉकेट्स बनानी हो तो केमिकल मशीनिंग उसके लिए बेस्ट है, और कोई भी अगर कोई भी ज्योमेट्री है जिसको रेप्लिका बनाना हो तो उनके लिए भी केमिकल मशीनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से स्पेशल कंटोर्ड शेप्स हैं जिनके अंदर बहुत डाइज होती हैं, जिनकी बहुत माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, कास्टिंग डाइज जो होती हैं, वो आप डेवलप कर सकते हैं ईडीएम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग या इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग को यूज़ करते हुए, क्योंकि उसके अंदर टूल आप इलेक्ट्रोड को उस शेप का बना देंगे और रिजल्ट में बिल्कुल वैसा जो है वो वर्क पार्ट बन जाएगा। इन दोनों प्रोसेस में क्योंकि ऐसे होता है तो दैट इज़ वाई जो कॉम्प्लिकेटेड शेप्स की डाइज होती हैं उनको बनाने के लिए ये दो प्रोसेस सुटेबल हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि अगर कोई ऐसा चीज़ आपको दी गई है कि मुझे ये काम करना है, तो आप ये टेबल यूज़ करेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये करता हूँ, ठीक है। लेकिन आगे भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी इम्पोर्टेंस है, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर ये है कि क्या अगर मटेरियल स्पेसिफाई किया होगा तो हर प्रोसेस उसके ऊपर यूज़ हो सकता है तो नहीं। अब आप गौर से देखें इस स्लाइड को भी, पिछली स्लाइड में कोई सवाल तो नहीं है इसमें से? नो मैम। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि बेसिक मटेरियल्स किए हुए हैं, इनको हम बहुत स्पेसिफिक होके अब देखते हैं कि ये जो मटेरियल्स गिवन है इनमें एल्युमिनियम, स्टील और सुपर एलॉयज ये तीनों तो मेटल्स में आ रहे हैं, बाकी सिरामिक, ग्लास, सिलिकॉन ये तीनों जो हैं वो ब्रिटल मटेरियल्स में से आ रहे हैं, और ये प्लास्टिक्स अलग मटेरियल हैं। कार्डबोर्ड में उसने कहा है कि कार्डबोर्ड रेफर कर रहा है, सिलिकॉन रेफर कर रहा है वो तमाम पार्ट्स जो कि सर्किट या चिप्स बनाने में यूज होते हैं, और कार्डबोर्ड रेफर कर रहा है हर तरह के पेपर प्रोडक्ट को, और टेक्सटाइल्स रेफर कर रही है हर तरह की फेल्ट, लेदर या सिमिलर मटेरियल्स को। तो अब आपने ये देखना है कि क्या मेरा जो प्रोसेस है इज सुटेबल फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी दैट एल्युमिनियम ए शोज दैट, यहाँ पर कोडिंग सिस्टम किया हुआ है, ए शो कर रहा है कि ये इसकी गुड एप्लीकेशन है, यानी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एल्युमिनियम के लिए पुअर एप्लीकेशन है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एल्युमिनियम के लिए नहीं की जाती, और डी का मतलब है कि नॉट एप्लीकेबल है, और अगर ब्लैंक डाटा है तो दैट मीन्स कि इसके लिए डाटा मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वाई in electrochemical machining and electric discharge machining and plasma arc cutting में जो है वो इन तीनों में जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके लिए डी ऑप्शन लिखा हुआ है, ये देखें ये डी ऑप्शन, ठीक है। why is that? because these all materials can't be used as an conductor, right? And in electrochemical machining, in electric discharge machining and in plasma arc cutting जो कि आज आपने पढ़ी है, तीनों के लिए हमें वर्क पीस को पॉजिटिवली चार्ज करना पड़ता है। दैट इज वाई ये सारे मटेरियल्स इन प्रोसेस के थ्रू मशीन नहीं हो सकते, राइट? समझ आ गई ये बात? एल्युमिनियम, स्टील और सुपर एलॉयज में से जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है वो भी बेहतर है, BAA ग्रेड दिया हुआ है, और प्लाज्मा आर्क कटिंग भी A इन सब तीनों के लिए बेहतर है, ठीक है, बिकॉज दे कैन
they are conductor of electricity, they can be charged, positively charged, that is why they can be used in these processes, ठीक है, for machining. फिर आप देखें कि वाटर जेट कटिंग जो है वो स्टील, सुपर एलॉय, सिरामिक और ग्लास वगैरह पे नहीं हो सकती क्योंकि इनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है एंड वाटर कांट प्रोड्यूस दैट मच मैकेनिकल एनर्जी टू कट दीज मटेरियल्स, दैट इज़ वाई ये इनके ऊपर फिजिबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है इन मटेरियल्स के ऊपर जिनकी हार्डनेस ज़्यादा है. एल्युमिनियम के ऊपर भी ये पुअर एप्लीकेशन है, जबकि प्लास्टिक्स, कार्डबोर्ड और टेक्सटाइल्स के लिए वाटर जेट जो है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है. फिर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो है वो कार्डबोर्ड और टेक्सटाइल्स के ऊपर बिल्कुल नहीं यूज़ की जा सकती क्योंकि इनकी तो आपको पता है कि हो ही नहीं सकती है, ब्रशन वगैरह या मैकेनिकल प्रोसेस इस तरह अप्लाई नहीं हो सकता. उसके बाद फिर हम डायरेक्टली चलते हैं और हम देखते हैं कि जो थर्मल प्रोसेसेस हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेज़र बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, ये आप देखेंगे तमाम के लिए ये फेयर एप्लीकेशन है, यानी ये मल्टी टैलेंटेड दोनों प्रोसेसेस हैं और इनसे जो है वो बहुत सारे मटेरियल जो है वो कट हो सकते हैं. लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग और लेज़र बीम मशीनिंग की क्या प्रॉब्लम है जी? अब्दुल कुद्दूस मुझे बताएं, क्या हमने पढ़ा था? हाँ जी बोलिए, आपका माइक सही नहीं है जी. अली इमरान, मिस फॉर डीप कटिंग के लिए नहीं यूज हो सकता है ये? नहीं, क्या थर्मल प्रोसेस का क्या मसला है? मिस लेजर में तो ये था ना, डीप में, थर्मल में वो तो जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में तो वो मसला नहीं है, वो तो डीप कटिंग के लिए भी यूज हो सकता है जी. थर्मल. सारे प्रोसेसेस का सबसे बड़ा मसला ये है कि सरफेस फिनिश खराब हो जाती है और मटेरियल का माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. ये यस हमेशा मैम, बात ये याद आप रखो. लास्ट टाइम आपने बताया था ये. लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, और बल्कि आप लोगों ने खुद ही ये पूछा था मेरे से कि यस मैम, ये मैंने तो पूछा था कि यूज फिर क्यों करते हैं हाँ जब आपकी सरफेस फिनिश होती है, खराब होती है. exactly. ठीक है, तो जिस तरह ये हर मटेरियल के लिए यूज हो सकता है तो इसकी भी लिमिटेशन ये है कि इससे सरफेस फिनिश, क्योंकि टेम्परेचर्स जो हैं वो चेंज करते हैं माइक्रोस्ट्रक्चर को, तो हो सकता है कि वो उसको सॉफ्ट कर दें और वो जो हमें जहाँ यूज करना है, तो इस वजह से इन प्रोसेसेस के बाद एक्चुअली हमें हीट ट्रीटमेंट के जो साइकिल्स हैं वो दोबारा करने पड़ते हैं. तो दैट इज वाई, ठीक है, मल्टीपल मटेरियल्स के लिए, लेकिन हर एक प्रोसेस के अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं. अब आप देखें कि केमिकल मशीनिंग जो है वो एल्युमिनियम, स्टील वगैरह के लिए बेस्ट कंसीडर की जा रही है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है. सुपर एलॉयज के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है. सिरामिक्स के क्योंकि एचेंट अवेलेबल नहीं है तो इनके लिए पुअर एप्लीकेशन है, इनके लिए केमिकल मशीनिंग नहीं यूज़ की जाती. ग्लास और सिलिकॉन के लिए भी यूज़ की जाती है. सिलिकॉन में ये जो सिलिकॉन इंडस्ट्री है यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडस्ट्री है उसमें केमिकल मशीनिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अदरवाइज कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो कि इतनी माइन्यूट क्वांटिटी में, जो आपके मोबाइल फ़ोन में चिप्स सारी यूज़ हो रही हैं, आईसीज यूज़ हो रही हैं, वो सारी क्रिएट कर सके. तो सिलिकॉन की ही यूज़ हो रही हैं, तो वो जो केमिकल मशीनिंग है वो प्रोसेस जो है वो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. ठीक है, प्लास्टिक्स में भी ये पूरा एप्लीकेशन है और कार्डबोर्ड और टेक्सटाइल में इसका जो है वो नॉन एप्लीकेबल है केमिकल मशीनिंग. दैट्स पता है, कोई ये केमिकल रिएक्ट कर ही नहीं सकती है, रिएक्शन ही नहीं होता इनका. फिर आप देखेंगे दो कन्वेंशनल प्रोसेस को भी उसके साथ डिस्कस किया गया है कि किन मटेरियल्स के ऊपर कन्वेंशनल प्रोसेस यूज़ हो सकते हैं और किन पे नहीं यूज़ हो सकते. तो अगर हम देखें तो एल्युमिनियम और स्टील वगैरह पे तो हम करते ही हैं मिलिंग भी, ग्राइंडिंग भी, और सुपर एलॉयज में भी मिलिंग ग्राइंडिंग हो सकती है. ठीक है, सिरामिक्स ऑन दी अदर हैंड मिलिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि मिलिंग जो है वो आपने क्या लफ्ज़ पढ़ा था, कौन सा प्रोसेस है, 23rd चैप्टर में बार बार पढ़ते रहे हैं, इंटरमिटेंट प्रोसेस, यानी जो टूल है वो सरफेस को छोड़ता है, फिर वापस आता है, फिर छोड़ता है, फिर वापस आता है.
तो मिलिंग तो हो ही नहीं सकती सिरामिक पे, ठीक है, ये बात आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, किसी को कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए डी यूज हुआ है। ग्लास और सिलिकॉन का भी यही है कि वो ब्रिटल मटेरियल्स हैं, तो मिलिंग उन पे नहीं हो सकती। अलबत्ता उन पे ग्राइंडिंग इन सारों पे हो सकती है, खासतौर पे सिलिकॉन की ग्राइंडिंग हो जाती है। फिर प्लास्टिक्स के ऊपर जो है वो मिलिंग पॉसिबल है, और ग्राइंडिंग जो है वो इतनी नहीं की जाती, क्योंकि ग्राइंडिंग जो है वो प्लास्टिक्स की ऑलरेडी बेहतर सरफेस होती है, और कार्डबोर्ड और टेक्सटाइल्स पे कन्वेंशनल मशीनिंग यूज ही नहीं की जा सकती। तो बेसिकली इन सारे मटेरियल्स के लिए आप वाटर जेट कटिंग को, अगर आपको कह दिया जाए कि कार्डबोर्ड या टेक्सटाइल के ऊपर मशीनिंग करनी है, बताओ कौन सा प्रोसेस आप यू विल straight away go to only water jet cutting, no other process is available for this type of materials, ठीक है। इसमें कोई सवाल आप लोगों का? ये पूरा टेबल समझ आ गया? इसमें से कोई क्वेश्चन किया जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। यस मैम। यस बस। जी मैम। ठीक है, अच्छा फिर मुझे एक दो जवाब दे देना तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। मुदस्सिर, रोल नंबर 37। यस मैम। मुदस्सिर मुझे बताओ कि क्या कहते हैं, ये जो सिरामिक्स हैं वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन में क्यों नहीं यूज हो सकते? सिरामिक्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के थ्रू कट क्यों नहीं हो सकते? और थर्मल में ही इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग है, उसमें यूज हो रहे हैं और फेयर एप्लीकेशन है। मैम इसमें सिरेमिक का जो फिनिश है वो खराब हो जाएगा इससे, वो मटेरियल इस तरह का होता है सिरेमिक गलत का। गलत गलत, सोचो इसको। वो ब्रिटल हाँ जी, मटेरियल है। उस्मान बताएं आप। मैम क्योंकि ये नॉन मेटल है और उसमें क्या कहते हैं आप कंडक्टिविटी इनकी कम होती है, इस वजह से हाँ, और इंसुलेटिविटी मुदस्सिर कम होती देखो, उसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग और प्लाज्मा कटिंग, इन सारों में हमें वर्क पीस को पॉजिटिवली चार्ज करना पड़ता है। इस वजह से जो पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकते, यानी जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकते, वो सारे डी लगे हुए। ये बहुत Yes. इंपॉर्टेंट सवाल है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का, ठीक है। समझ आया अब आपको? जी मैम। अब तो नहीं भूलेगा? नो मैम। Because they are not conductor of electricity, that is why electrochemical machining, electric discharge machining and plasma are cutting is not possible in those materials। अच्छा जी, अब हम पूछ सकते हैं और क्या सवाल। हाँ जी, हाँ जी, मलिक हम्बल इमरान, रोल नंबर 30। रोल नंबर 30, कैन यू हेयर मी? मोहम्मद हमजा, रोल नंबर 35। मिर्जा मोहम्मद उस्मान इकबाल, रोल नंबर 39। जी मैडम। मुझे बताओ कि ये जो सिरामिक है उनके ऊपर मिलिंग क्यों नहीं हो सकती है, सिरामिक, ग्लास और सिलिकॉन वगैरह पे? वो सरफेस फिनिशिंग खराब कर देगा मैम, है सरफेस फिनिशिंग खराब कर देगा। सारी चीजों का जवाब आप लोग सरफेस फिनिश क्यों बता रहे हैं? सरफेस वो फिनिश तो मैडम अभी आपने यही तो बताया था। अभी मैंने सरफेस वो फिनिश का ब्लिटर बताया होते है, हैं। दोबारा सोचो। अभी तो मैंने इतनी सोच के एक लफ्ज भी निकाला है, इंटरमिटेंट ऑपरेशन। वो ये क्या तो होता मैडम है? याद करना ही बड़ा मुश्किल है। अभी तो बताया मैंने। इंटरमिटेंट ऑपरेशंस होने की वजह से मिलिंग इन मटेरियल्स पे यूज नहीं हो सकती। उसका क्या मतलब है मुझे बताइएगा। मोहम्मद हमजा खान, रोल नंबर 31। मोहम्मद हमजा खान किधर है सारे? आप लोग लॉग इन होके भाग गए हैं। मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी इन सारों की जो जवाब नहीं दे रहे। रोल नंबर 29। हाँ,
मोहम्मद अली। हमजा खान, आपकी भी आवाज नहीं आ रही, अली की भी आवाज नहीं आ रही। हेलो। मैम ये अमल कह रहा है कि मैं कंप्यूटर प्लेयर हूँ तो उसमें मुझे आवाज नहीं आ रही, अच्छा माइक अच्छा, चल रहा उसका। ठीक है। यासिर तुम ही बता दो। क्या मैम? ये जो मैंने बताया है कि जो मिलिंग ऑपरेशन है वो सिरामिक, ग्लास और सिलिकॉन पे इसलिए नहीं हो सकता कि मिलिंग एक इंटरमिटेंट ऑपरेशन है। इसका क्या मतलब है? ये चैप्टर 23 में बार बार पढ़ी है आप लोगों ने ये बात। जी मैम, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है हमला। वो मैम पता नहीं माइक काम नहीं कर रहा था, मैंने हाल अनम्यूट किया था, वो आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अब आ रही है। बताएं जो मैंने सवाल पूछा है। मैम इंटरमिटेंट ऑपरेशंस का, इसमें मैम जो मैम करंट जो है वो इंटरमिटेंट ऑपरेशन आपने जो बताया था वो बेसिकली मैम वो इलेक्ट्रिक कंट्रोल में यूज होता है, मतलब कि उस सिरेमिक पे यूज नहीं होगा क्योंकि सिरेमिक तो वो नॉन वो है, मतलब कि उससे इलेक्ट्रिक करंट पास तो नहीं होता जिसकी वजह से नहीं, फिर मिलिंग की बात मैं कर रही हूँ। अब मैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मशीनिंग इन सब का नहीं पूछ रही। जी मिलिंग में क्यों नहीं सिरामिक, ग्लास और सिलिकॉन यूज हो रहा? मैम मेरे में हम लोग हार्ड मटेरियल यूज करते हैं, सिरेमिक अगर मतलब मेटल यूज करते हैं, सिरेमिक तो वो सॉफ्ट मटेरियल में आ जाता है। को ब्रेक कर सिरामिक सॉफ्ट नहीं, सिरामिक बहुत हार्ड मटेरियल है। जी यासिर, आप बता रहे थे, आप क्या मैम बता ये रहे थे? करंट जो है वो ये मैम करंट ये वाली बता बात रहा तो, था करंट मिलिंग में करंट कहाँ से आएगा? मिलिंग करंट किस? इस मिलिंग एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है इसलिए। इसलिए कि ये इंटरमीडिएट डिसकंटिन्यूअस है। मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ। होता क्या है कि ये जिस तरह वर्क सरफेस है, ठीक है, और ये जो है वो ऊपर टूल है। अब टूल जो है ना वो यहाँ से यूं मूव करेगा, सरफेस को छोड़ के बाहर आएगा, फिर वापस इम्पैक्ट इसके ऊपर डालेगा। जब ये इम्पैक्ट डालेगा तो अगर वर्कपीस सिरामिक, ग्लास या सिलिकॉन का होगा तो उनकी टफनेस अच्छी होती ही नहीं है, तो दैट इज व्हाई दे विल ब्रेक। इसीलिए फॉर इंटरमिटेंट ऑपरेशंस यू कांट यूज सिरामिक, ग्लास और सिरेमिक है। सिलिकॉन, ब्रिटल मटेरियल आप उनमें मशीन नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई ये हार्ड डी एप्लीकेशन इनके लिए लिखी गई है कि ये नॉट एप्लीकेबल है इन मटेरियल्स के लिए। और ये पूरी साइंस चैप्टर 23 में मैं बार बार बता चुकी हूँ। पढ़ना शुरू कर दो, पेपर बहुत मुश्किल बनाऊंगी मैं, ठीक है? अच्छा जी, मोहतशिम 06, रोल नंबर 06। सैयद मोहतशिम, रोल नंबर 06। कैन यू हेयर मी? नो रिस्पॉन्स। अच्छा जी, 07 बिलाल अकरम। रोल नंबर 007। रोल नंबर 01। इन सारों की अटेंडेंस नहीं लगेगी आज। 05 अफाक। अफाक अली। जी मैम। अफाक देखो, मिलिंग भी कन्वेंशनल प्रोसेस है और उसमें हम कहते हैं कि सिरामिक, ग्लास और सिलिकॉन नहीं यूज हो सकता, और सेम ग्राइंडिंग है तो ग्राइंडिंग में हम कह रहे हैं यूज हो सकता है। ये क्यों? क्या चीज मैम? मिलिंग में हम कह रहे हैं ना सिरामिक, ग्लास और सिलिकॉन नहीं यूज हो सकता जी एज अ वर्क मटेरियल, जी। लेकिन सेम कन्वेंशनल प्रोसेस ही है, ग्राइंडिंग भी, टूल भी, दोनों के तकरीबन सेम ही होते हैं, लेकिन ग्राइंडिंग में हम कह रहे हैं कि यूज कर सकते हैं। पुअर एप्लीकेशन है, लेकिन
सिलिकॉन में तो फेयर एप्लीकेशन है, यूज तो कर रहे हैं, वो क्यों? मैम इसमें तो हमारे पास वो ग्लास में तो हमें वो सरफेस फिनिशिंग चाहिए होती है, क्लीन सरफेस। सरफेस तो फिनिश उसमें की तुम ग्राइंडिंग लोग बात कर रहे हो, सरफेस फिनिश सिर्फ थर्मल प्रोसेस का मसला है। ये जो थर्मल प्रोसेस है ना, सरफेस जी फिनिश सिर्फ इन 4 प्रोसेस का मसला है कि इसमें सरफेस फिनिश खराब हो जाती है और माइक्रोस्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। कन्वेंशनल प्रोसेस में सरफेस फिनिश ग्राइंडिंग तो इटसेल्फ बहुत अच्छी सरफेस फिनिश देता है। आपका जवाब ये है कि ग्राइंडिंग इंटरमिटेंट ऑपरेशन नहीं है, मिलिंग इंटरमिटेंट है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता ग्राइंडिंग का। दैट इज जी व्हाई ये जो है वो ब्रिटल मटेरियल्स पे भी यूज हो सकता है, लेकिन मिलिंग नहीं हो सकती। ठीक है? यस मैम। अच्छा, अब सरफेस फिनिश वाला आंसर सिर्फ यहाँ तक महदूद रखना है कि थर्मल प्रोसेस कहीं नहीं हो पा रहा तो वो सॉरी थर्मल हम नहीं करना चाहते क्योंकि हम ये ईडीएम या ईबीएम या एलबीएम या पीएसी हम नहीं करना चाहते जहां पर हमें सरफेस फिनिश चेंज नहीं करनी। और जो मटेरियल्स कंडक्टर नहीं है उन पे ईसीएम, ईडीएम और पीएसी नहीं हो सकता। ठीक है? और जो कार्डबोर्ड और टेक्सटाइल के मटेरियल्स हैं वो सिर्फ वाटर जेट कटिंग से मशीन हो सकते हैं। ठीक है? ये सिर्फ इसके अंदर साइंस थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद परफॉर्मेंस कैसी है नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेसेस की, तो आप देखें कि मटेरियल रिमूवल रेट्स जो है ना वो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के भी पुअर ही हैं, वाटर जेट कटिंग के भी पुअर हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है उसके फेयर हैं, बेहतर रिजल्ट देता है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के भी स्लो है मटेरियल रिमूवल, ईबीएम के तो बहुत पुअर हैं, एलबीएम के भी मटेरियल रिमूवल रेट्स क्योंकि इतनी माइन्यूट पॉइंट में वो वर्किंग कर रहा होता है तो इनके लो हैं। जबकि जो प्लाज्मा आर्क कटिंग है ना उसका अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट है मटेरियल रिमूवल के लिहाज से क्योंकि ये गैस की फॉर्म में होता है तो ये तेजी से मटेरियल को रिमूव करता है। और केमिकल मशीनिंग में B2D लाई करता है, यानी गुड भी है और कुछ में पुअर भी है मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका वर्क पीस का साइज क्या है। ठीक है? अगर साइज बहुत बड़ा होगा, मास्किंग बहुत ज्यादा रिक्वायर होगी तो फिर स्लो हो जाते हैं मटेरियल रिमूवल। जबकि मिलिंग और ग्राइंडिंग जो है वो अच्छी मटेरियल रिमूवल रेट्स देता है जो कन्वेंशनल प्रोसेस है। ठीक है? दैट मीन्स के दीज आर प्रोसेस आर टाइम टेकिंग इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल प्रोसेस। फिर डायमेंशनल कंट्रोल जो है वो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में भी बहुत अच्छा मिलता है। ये सारे प्रोसेस ही तकरीबन अच्छा डायमेंशनल कंट्रोल देते हैं। सिर्फ जो प्लाज्मा आर्क कटिंग है क्योंकि उसमें गैस पार्टिकल्स हैं तो उसका डायमेंशनल कंट्रोल इतना एक्यूरेट नहीं है। ठीक है? केमिकल मशीनिंग में A to B लाई करता है डिपेंडिंग अपॉन के कटिंग कंडीशंस क्या हैं। ठीक है? फिर सरफेस फिनिश जो है वो आप देखें कि अल्ट्रासोनिक, वाटर जेट कटिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की अच्छी है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में इस थोड़ी सी कम है। इन सब में सरफेस फिनिश क्योंकि लो है तो गुड रेंज में आती है। ईडीएम में ज़्यादा कम आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से करें। और प्लाज्मा आर्क की सरफेस फिनिश भी अच्छी नहीं है। ठीक है? इसमें बहुत बड़े एरिया को वो डिस्टर्ब करता है। केमिकल मशीनिंग की सरफेस फिनिश भी नॉर्मल स्केल में आ रही है, जबकि मिलिंग और ग्राइंडिंग में तो होती ही सरफेस फिनिश के लिए, तो वो तो ए है। और सरफेस डैमेज जो है ना वो इन सब का बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखें, इन सरफेस डैमेज या गुड रेटिंग मींस लो सरफेस डैमेज, तो बी का मतलब है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग लो सरफेस डैमेज करता है, वाटर जेट भी लो सरफेस डैमेज करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग कोई सरफेस डैमेज नहीं करती, बिल्कुल प्रोडक्ट वैसी ही आती है और फौरी तौर पे यूज हो सकती है। जबकि ये तीनों चारों जो प्रोसेस हैं थर्मल वाले वो सरफेस को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। फ्रंट सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है? फिनिश का मतलब है कि ग्रेनुलर हो जाए सरफेस, यानी अप एंड डाउन आ रहा हो, वो इन सब का बेहतर है थर्मल का। लेकिन देखें वो फिजिकल अपीयरेंस उसकी खराब हो जाती है सरफेस और माइक्रोस्ट्रक्चर खराब हो जाता है, इसलिए सरफेस डैमेज में इनको मिनिमम मार्क्स मिले।
फिर केमिकल मशीनिंग का सरफेस डैमेज बेहतर है बहुत ज़्यादा, वो सरफेस को डैमेज नहीं करती। मिलिंग का नॉर्मल है, और ग्राइंडिंग का भी किसी हद तक इन दोनों के दरमियान लाई करता है, वो भी सरफेस को डैमेज किसी हद तक करती है अगर कटिंग कंडीशन हम इस तरह की रखें। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस है। ये लास्ट स्लाइड थी, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसको पढ़िएगा। जो ना समझ आए वो मुझे बताइएगा। असाइनमेंट आपकी एक अपलोड होगी और वो आपने करनी है। और मैं अगेन आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आर यू ऑल एबल टू परफॉर्म प्रोजेक्ट? अगर मैं आपको एक प्रोजेक्ट असाइन करूं कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम से के नाम से, जिसमें आपको वर्क पीस लेना पड़े कोई भी, मैम प्रैक्टिकल होगा ना? हाँ जी, ठीक है हम कर लेंगे। थ्योरी नहीं होती, थ्योरी मैम नहीं Sorry? होती हमारे से। हाँ हम प्रैक्टिकल बन जाए, थ्योरी नहीं होती। थ्योरी का काम नहीं होता मैम, ये कॉम्प्लेक्स वाला प्रैक्टिकल का हो जाएगा। प्रैक्टिकल कर लेंगे, यस मैम। ऑल कैन डू दैट, किसी को कोई मसला तो नहीं है? थ्योरी हो जाएगा, प्रैक्टिकल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थ्योरी हो मैम जाएगी, प्रैक्टिकल ज्यादा practical- इजी है, थ्योरी का कोई अता पता नहीं चलता मैडम। मैम प्रैक्टिकल ठीक है। बात सुनो, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो और मुझे एक दिन के अंदर मैडम आपस में डिसाइड नहीं होना इधर। बस के ठीक है, प्रैक्टिकल डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। वोटिंग प्रैक्टिकल डिफिकल्ट हो जाएगा, थ्योरी बेस्ट करवा है। लो और अपने सीआर को कल तक मैसेज कर देना कि हमने प्रैक्टिकल करना है कि थ्योरी करनी है। मैम आप मैम प्रैक्टिकल ठीक है। मैडम प्रैक्टिकल फाइनल कर लें, आप यहीं पे वोटिंग करा वोटिंग करा लो ना। मैम वैसे भी इंजीनियर है मैम हम। खैर हो जरा, मैं यहाँ पर जनरेट करती हूँ। यहाँ पर पुल जनरेट हो जाता था, कहाँ है? खैर हो जरा, हमें किसी ने सिखाया था ये। मैम हैंडराइज करवा ले, है हैंडराइज करवा ले। हैंड हाँ, करवा हैंड लेंगे। रेज करवा लो। जो ये चाहते हैं कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दिया जाए, वो हैंड रेज करें। ये जल्दी से कर लें ताकि मैं गिन लूं। उफ अल्लाह, ये गिना कैसे जाएगा? मैम आधे तो सो रहे होंगे। हम ठीक है, आधे बच्चे थ्योरी सो वाले रहे हैं ज्यादा जिनको जिन्होंने जवाब भी नहीं दिया। भैया आपने उनके घर जाके नहीं देखा, वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, वोटिंग हो रही है, यहीं पर डिसाइड होगा। प्लीज इसलिए तो मैं कह रही हूँ अपनी सीआर को बता देना। वैसे आप हैंड रेज नहीं ज्यादा चलता मिस है। अभी मैडम वोटिंग हैंड कर रेज लें, कितने दोपहर के करने टाइम होते कौन हैं? सोता है अभी तो। मिस दोपहर के टाइम कौन सोता है अभी तो, जुमा होगा, मैम पढ़ मेजॉरिटी के आए हैं सारे, कौन सो होगा अभी। भाई अभी मैम तो मेजॉरिटी जवाब प्रोजेक्ट सुनेंगे की दे दी है। अच्छा चलो ठीक है ना, मेजॉरिटी प्रैक्टिकल की अब हैंड रेज करवा दें जो थियरी करना चाहते हैं। तो अगर वो काम हाँ हुए पागल है। तो जो बोगस वोट थे वो तो निकाल जाएंगे ना। अब वो हैंड रेज करें जो कि अभी प्रैक्टिकल वाले कितने हैं, ठीक है। अब वो हैंड रेज करें जो थियरी करना चाहते हैं। मैम ये जाहिद हुसैन का प्रॉब्लम होगा, वो काफी दूर रहता है स्कर्दू वगैरह में, तो वो प्रैक्टिकल किस तरह करेगा? भाई वहाँ पे भी तो इंडस्ट्रीज होती है ना यार, क्या हो गया? थ्योरी के वोट ज्यादा हो गए हैं। हाँ कितनी इंडस्ट्री होती है यार, मुझे बताओ जरा। यस मैम, मुल्तान में भी कोई इंडस्ट्री नहीं है ऐसी। मैडम 9 है थ्योरी आपको के, चाहिए 13 थे लेथ प्रैक्टिकल वाला के। तो आपको पंजाब अपने घर बोर्ड। के मैम पास प्रैक्टिकल के मिल जाएगा। ज्यादा है। मिस लेथ थ्योरी मैम वाला ये तो नहीं हो आपके सकता, घर के पास मिल बच्चे जाएगा। आउट ये ऑफ सिटी भी हैं, मैम ये मरी में नहीं भी हो होते सकता हैं जो तो प्रैक्टिकल वेल्डर भी मौजूद होते हैं, एक मिनट लेथ वॉश मशीन में। भी मौजूद होती है। ये इंडस्ट्री नहीं में हो थोड़ी सकता जाना पड़ेगा। कि आप क्या कहते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल करना वो प्रैक्टिकल कर लें, जिन्होंने थ्योरी ये करना वो फिर थ्योरी मेरे लिए कर बहुत लें। मसला हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मिस थ्योरी कर ले, वो बेस्ट रहेगा क्योंकि काफी आउट ऑफ सिटी है तो ग्रुप बन नहीं सकता इस तरह से। कुछ भी नहीं करते, मैं खुद डिसाइड करती हूँ। चलो